Mark your presentee as the recording has been started. Everyone should mark the presentee in the chat box. Write your name along with your standard. So I that I can proceed with the same. 3 standard students are here. So अगर आप standard mention करोगे, so we will start with the majority. Avneet 6th, Harkirat 5th, Shreyanshi 5th, Daksh 5th, Pranav 7th, Harshpreet 5th, Harkirat 5th, Rutuja 5th. Okay, so as you can see, many students are there from standard 5th, so we will proceed accordingly. Only one student is from 7th and 6th standard. So first you have to pay attention whenever I'm teaching to standard 5th. So standard 5th, we have started your lesson number 3, that is testing to digesting. Yes, do you all remember some tests we have learned about? Yes. It's not getting open. Please wait. Okay. So we have learned about different tests. Now, uh, close your eyes and check. Collect few food items having different kinds of taste. Play a game with your friend like Jhumpa and Jhulan did. Tell your friend to taste the food and ask how did it taste, what was the food item. आप भी ये गेम अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हो. टेस्ट फ्यू फूड आइटम्स एंड आप में से एक के आंखें बंद कर दो एंड जस्ट बाय टेस्टिंग you can guess the food's name. Okay. On which part of the tongue could you get the most taste? In front, at the back, on left or right side of the tongue? मुझे बताइए कौन से आपके टंग के कौन से पार्ट पे आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट महसूस होगी? इन फ्रंट, एट द बैक, लेफ्ट और राइट? बोलो. जो भी चीजें आप खाते हो उसकी टेस्ट कहाँ पे फील करते हो? एवरीवन. राइट साइड ऑफ द ट्रंक और इन फ्रंट? ओके, लेट्स सी. Which test could be made out on which part of the tongue? Mark these parts on the picture given. और आप ये भी देख सकते हो इसमें से कि डू यू नो योर tongue has specific parts and according to that आपके जो टेस्ट्स है वो उसके हिसाब से किए जाते हैं. लाइक आपकी टंग पे जो एक स्पेसिफिक पार्ट और स्पेसिफिक टेस्ट के लिए रहता है. डू यू नो दिस थिंग? Yes, anyone? Wait, I'm gonna show you. Just a minute.
Okay, see if my screen is visible to you now. It is? Yes? Okay. So, this is the part of tongues where you can feel the taste accordingly. जो भी सोर टेस्ट है वो लेफ्ट एंड राइट साइड के साइड वाले पार्ट में, स्वीट जो आगे वाला पार्ट है, बिटर इन इनसाइड पार्ट एंड सॉल्टी द जो भी आगे वाला पार्ट है उसके कॉर्नर्स में. गॉट इट? यस. Part of tongue according to the taste is, have you got it? Okay. So जो भी फूड आइटम्स आप सिलेक्ट कर रहे हो इस एक्टिविटी के लिए, आप उसके हिसाब से वहां पे लिख सकते हो. ओके. यूज अ क्लीन क्लॉथ टू वाइप द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग सो दैट इट इज ड्राई. आपको एक अच्छा सा क्लीन कपड़ा लेना है एंड उससे वाइप करना है अपनी टंग को, फ्रंट पार्ट को, सो दैट वो सूख जाए. इट विल बिकम ड्राई. Put some sugar or jaggery there. Could you test anything? Why did this happen? So front part पे आपको क्या करना है, जैगरी या फिर शुगर रख देना है. So आप कुछ टेस्ट कर सकते हो. Yes or no? Could you test or something? बताइए मुझे. You can see just now I have showed you that see sweet you can taste on the front side. ये स्वीट. तो आपको पूछा गया है कि अगर आप अपने टंग के फ्रंट पार्ट पे शुगर रखते हो या फिर जैगरी रखते हो, सो क्या आप उसको टेस्ट कर पाओगे? बताइए. स्टैंडर्ड फिफ्थ आई एम आस्किंग टू यू. यस. ओके. Stand in front of a mirror and look closely at your tongue. How does the surface look? Can you see any tiny bump on the surface? So आपके जो भी टंग है उसके उसके पार्ट पे आप टेस्ट कर पाते हो बिकॉज ऑफ द टेस्ट बर्ड्स यू हैव, राइट. आप मिरर के सामने खड़े होके अपनी टंग बाहर निकाल के चेक करो. इज इट द स्मूथ सरफेस और यू हैव द टाइनी बम्प्स ऑन योर टंग? बताइए मुझे. आपकी टंग में टाइनी बॉम्ब्स है, छोटे छोटे बम्प्स की तरह दिखते हैं वहां पे. यस. क्या बोलना है उन्हें? यस श्रेयांशी. स्मॉल स्मॉल लाइक जो भी छोटे छोटे बम्प्स है, लाइक व्हाट यू कैन सी, व्हाट यू कैन से, पार्टिकल टाइप कुछ तो दिखता है हमारी टंग पे एंड इट इज अ पार्ट ऑफ दैट टंग ओनली. तो उन्हें हमें कहना है बर्ड्स. दे आर कॉल्ड एज बर्ड्स. ओके. टेल. If someone asks you to describe the taste of amla or cucumber, you might find it difficult to explain. अगर आपको किसी ने आंवला या कुकुम्बर का टेस्ट पूछा तो मुझे बताइए आंवला का टेस्ट क्या होता है? इट्स नॉट एक्चुअली सोर. एनीवन एल्स? सिर्फ खट्टा होता है क्या आंवला? It's kind of like
एक मिक्सचर की तरह होता है। ओके, समटाइम्स आपको वो खट्टा लग सकता है। यस, मराठी में वी कॉल्ड इट एज तुरट। ओके, उस टेस्ट को तुरट बोलते हैं। आई डोंट नो व्हाट वी कॉल्ड इट इन इंग्लिश। Yes, the it's actually mixture of little bit bitter, sour and sweet. आप आपने अगर खाया है गूसबेरी, आंवला अगर खाया है, सो आप ये आपने देखा होगा कि पहले वो खट्टा लगता है, देन थोड़ी देर बाद अ, उस पे अगर पानी वगैरह पिया जाए तो वो स्वीट टेस्ट आता है। हैव यू ईटन आंवला? नो। एनीवन एल्स? व्हाई? व्हाई यू हैवंट? नो वन? कभी भी नहीं खाया किसी ने? Okay, so it's kind of mixture of taste. Okay, now how would you describe the taste of this? Tomato, tomato का टेस्ट बताइए। Yes, tomato is how it can be salty, sour also. It can be sour also. How salty? If we are putting salt on it, then it will become salty. Otherwise, the natural taste is sour and sweet. What about onion? Onion, अनियन का टेस्ट कैसा रहता है? सोर मतलब खट्टा। अनियन खट्टा रहता है। ओके, फाइंड आउट द टेस्ट ऑफ tomato, onion, sauce and garlic and write it in your notebook. Think of words that you know or make up your own words to describe the taste. When Jumpa tasted some of the things, she said, do you think she may have eaten? Why don't you make sound that describes some tastes? From your expression and sound, ask your friends to guess what you might have eaten. So झुम्पा ने क्या किया, उसे भी टेस्ट के नाम नहीं पता थे, तो उसने क्या किया, ऐसे कुछ आवाजें निकाली। तो जैसे ऐसे आवाज निकाली, तो क्या लगता है आपको कि झुम्पा ने वो चीज खाई होगी फिर पूरी? व्हाट डू यू थिंक? शी मस्ट हैव ईटन और नॉट? नो। Chew it or chew it well, what's the difference? Try this together in class. Each of you take a piece of bread or roti or some cooked rice. Okay? हमें क्लास में एक एक्टिविटी ट्राई करनी है जिसमें आप में से सब लोग एक एक पीस लेंगे ब्रेड, रोटी एंड सम कुक राइस, पका हुआ राइस। Put it in your mouth, chew 3 to 4 times and swallow it. ये आपके मुंह में डालना है, 3 4 बार चबाना है एंड सॉलो करना है। Did the taste change as you chew it? आप ये सारे रोटी, ब्रेड एंड राइस, इसको चबाते वक्त इसका टेस्ट चेंज होता है या नहीं? Everyone, okay. Now take another piece or some rice and chew in 30 to 32 times. Was there any change in the taste after chewing so many times?
अब फिर आपको वो जो आपका खाना है उसको 30 to 32 टाइम चबाना है, तभी टेस्ट में कुछ डिफरेंस आएगा। यू थिंक और आपने ये एक्टिविटी घर पे करनी है। टेक रोटी का टुकड़ा एंड डू दिस एंड देन टेल मी, ओके? Discuss. Has anyone at home told you to eat slowly and to chew well so that the food digests properly? आपको कभी किसी ने घर पे बोला है, मम्मी ने, पापा ने, दादी दादा ने, कि धीरे धीरे खाओ, चबा के खाओ, सो दैट इट विल हेल्प यू इन डाइजेशन? बोला है? यस। सो क्या आपको लगता है कि हाँ ये सच में डाइजेशन में काम कर, हमारे हमारे लिए हेल्दी है एंड हमारे डाइजेशन में इसका यूज होगा? डू यू थिंक सो? यस। Imagine you are eating something hard like a green guava. What kind of changes takes place in it from the time you bite a piece and put it in your mouth to when you swallow it? अगर आप एक गावा का एकदम हार्ड पीस खा रहे हो, अमरूद खा रहे हो, ओके, तो उसके बाद आप पहले उसका एक पीस चबाओगे, फिर आप जब उसको सॉलो करोगे, उस स्टेज तक जाते जाते उस अमरूद में क्या क्या चेंजेस होंगे, किस तरह वो बदलेगा? बोलिए। पहले वो एक हार्ड पीस होगा, उसके बाद आप थोड़ा चबा के उसको स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करोगे, एंड उसके बाद और चबा के उसको एकदम लिक्विफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, जो कि हमारे वोकल कॉर्ड में से, हमारे जो ईसोफेगस है, जो भी हमारी अन्न नलिका है, उसमें से नीचे हमारे स्टमक तक, इंटेस्टाइन तक चला जाए। राइट? यस। एम आई राइट? ओके। थिंक व्हाट डज द सलाइवा इन आवर माउथ डू? पता है आपको, हमारी मुंह में से एक एंजाइम, सलाइवरी एंजाइम, जो भी सलाइवा सिक्रेट होते रहता है हमेशा, उस सलाइवा, वो सलाइवा क्या करता है, हम जो भी खाते हैं उसमें मिक्स हो जाता है एंड उसको डाइजेस्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। यस। ओके। सो हियर I didn't understand your question, Shreyanshi. सलाइवा इज द एंजाइम प्रेजेंट इन योर माउथ। जो भी चीज देख के आपके मुंह में, अगर कोई पसंदीदा चीज है, वो देख के आपके मुंह में जो पानी आता है उसे सलाइवा कहते हैं। ओके, गॉट? So this is done for standard fifth. In the next lecture we will discuss this one. Okay, so let's move to standard sixth में से कितने बच्चे? Raise your hand. Sixth, only Avneet. Okay. Okay, Avneet, do one thing. As our lesson number 2 is done, आपको do you have this book, Avneet? Yes, ma'am. Okay, so पेज नंबर 17 पे जो भी आपके दिस फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको लिखने हैं आपकी नोटबुक में।
Okay. In the next session, we will start with your lesson number 3. Okay, Got ma'am. it? Okay. Seventh standard, raise your hand. Seventh standard. Two are there. Amnit, when you get completed, let me know. For seventh standard also, we have started your lesson number 2 in the previous session. Yes, nutrition in animals. So the component of food, such as carbohydrate, are complex substances, and these complex substances cannot be utilized as such. So they are broken down into simpler substances. The breakdown of complex component of uh, this food into simpler substance is called digestion. So अभी हमने सीखा कि जो भी बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उनको छोटे छोटे फॉर्म जो डाइजेस्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, मतलब उनका ब्रेक डाउन करके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करना, उसी को डाइजेशन बोला जाता है. Different ways of taking food. So, every animal has their own way of taking food. जिस तरह से हम हाथ से खाते हैं, क्या बर्ड्स भी अपने हाथों से खाते हैं? लाइक दे अपने पैरों से खाते हैं वो? No. Hmm. So every animal has their own way of taking food inside. The mode of taking food into the body varies in different organisms. Bees and hummingbirds suck the nectar of plant, infant, and human, and many other animals feed on mother's milk. So जो भी बीज, मक्खियाँ एंड हमिंग बर्ड्स होते हैं, वो फूलों से जाकर नेक्टर चूसते हैं. इन फ्रंट ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल, ह्यूमंस के बच्चे एंड अलग अलग एनिमल्स के जो भी छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वो अपनी माँ के दूध पर पलते हैं. स्नेक्स लाइक द पाइथन सॉलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन. पाइथन की तरह जो सांप होते हैं अजगर की तरह, वो डायरेक्टली अपना जो भक्ष्य है, जो प्रे है, उसे सॉलो कर लेते हैं. सम एक्वाटिक एनिमल फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम. सो जो भी एक्वाटिक एनिमल है वो क्या करते हैं, उनके पानी में फ्लोट होने वाले जो जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल है उनको खा लेते हैं. ओके. व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ फॉलोइंग एनिमल? राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिविंग टेबल. यहाँ पे आपको टेबल दिया गया है एंड ऑप्शंस भी दिए गए हैं. स्क्रैपिंग, चूविंग, सिम्फोनिंग, कैप्चरिंग एंड सोलविंग, स्पॉन्जिंग, सकिंग. ओके. तो हर एक जो एनिमल है वो अपना फूड किस तरह लेता है, वो आपको मोड ऑफ फीडिंग में लिखना है. तो बताइए मुझे. फर्स्ट है स्नेल. स्नेल का मोड ऑफ फीडिंग कैसा रहता है? सेवेंथ स्टैंडर्ड, बताइए. अतुल, आर्यन. टेल मी. यस. एंट. हाउ डू एंट ईट? एंट कैसे खाती है? ईगल, हमिंग बर्ड, बताइए जल्दी जल्दी. अतुल, कैन यू हियर मी? Tell me if you are there, seventh standard students. Don't waste the time. Other students are waiting for their studies. Seventh Yes, ma'am. standard.
7th स्टैंडर्ड में से कौन कौन है? प्रणव। Yes, Pranav. Can you hear me? Yes, ma'am. So I am asking you something. Tell me these animals mode of feeding कैसा रहता है उनका? Do you have the same book with you? Yes. Write down this table. Write down this whole table in your notebook. And after that completion, I am going to tell you the answer. If you don't know, try to find out. And still, if you are not getting, I am going to tell you the answers. Standard 7th, I am telling you again. Your lesson number 2, page 1, containing the table 2.1. You have to write it in your notebook. Find out their kind of food animals are given, kind of food you have to find out, and their mode of nutrition. Write down. If you're not getting it, I'm giving you the answers. First, try to find out. Avneet, you are done with the 4 fill in the blanks. Yes, one is left. Okay, please pay attention first. We will start your lesson number 3, and then you can continue with the same, whatever you are writing. Okay, fiber to fabric, your lesson number 6. So, Paheli and Bujo won the first prize in science quiz competition held at their school. They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. So, Paheli and Bujo ने उनके स्कूल का साइंस क्विज कंपटीशन जीता एंड उनको उसमें प्राइज में कुछ पैसे मिले, तो उनको उनके माँ बाप के लिए कपड़े लेने थे. When they saw a large variety of cloth material, they got confused. लेकिन जब वो कपड़े लेने गए तो बहुत सारे अलग अलग वैरायटी दिखे कपड़ों के, तो वो कंफ्यूज हो गए. फिगर 3.1 इज शोइंग द. आपने कभी ऐसे क्लॉथ शॉप देखी है अवनी? सिक्स Yes, ma'am. स्टैंडर्ड, टेल मी. यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कपड़े होते हैं. यस. Yes, ma'am. ओके. So the shopkeeper explained that some clothes or fabrics were cotton and some were synthetic. So जो शॉपकीपर था, दुकानदार था, उसने बताया कि कुछ कपड़े कुछ कपड़ों के जो फैब्रिक्स है वो कॉटन है एंड कुछ के सिंथेटिक है. He also had woolen muffler had and shawl. उसके पास वूल के मफलर भी थे एंड शॉल भी थे. There were many silk sarees as well. सिल्क की बहुत साड़ियाँ भी थी. पहेली एंड बूझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड. तो पहेली एंड बूझो को बहुत एक्साइटमेंट हुई. They touched and felt these different fabrics. Finally, they bought a woolen muffler and a cotton साड़ी. तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग कपड़ों को हाथ लगाया और उसमें से वुलन मफलर एंड अ सिल्क साड़ी खरीदी. तो बताइए मुझे अवनीत, हैव यू टच द डिफरेंट डिफरेंट फाइबर ऑफ क्लोथ्स? आपने टच करके देखा है कभी ये डिफरेंट डिफरेंट कपड़ों को जो अलग Yes, अलग ma'am. फाइबर से बने हैं? After their visit to the cloth shop, Paheli and Bhusha began to notice various fabric in their surroundings. They found that bedsheets, blankets, curtains, tablecloth, towel and dusters were made from different kind of fabric. So, जब उन्होंने शॉप को विजिट किया तो उनके आजू बाजू में भी बाद में, क्योंकि वहाँ पे शॉप में उन्हें अलग अलग कपड़ों के बारे में पता चला, तो उनके आजू बाजू जो भी फैब्रिक थे उसमें से उन्होंने देखा कि बेडशीट, ब्लैंकेट, कर्टन, टेबल क्लॉथ एंड टॉवेल
एंड डस्टर्स। ये सारी चीजें अलग अलग तरह के कपड़ों से बनी हुई है। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड द गनी बैग्स वेर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। तो उनके जो स्कूल बैग है एंड गनी बैग है वो भी अलग अलग फैब्रिक से बने हैं। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक? सो क्या आप कॉटन, वूल, सिल्क एंड सिंथेटिक फैब्रिक पहचान सकते हो अवनी? अवनी? Yes, ma'am. ओके। वुलन्स हम कब यूज करते हैं? I'm in the winters. एंड कॉटन? I'm in the summer. Variety in fabric. Visit a nearby tailoring shop. Collect cuttings of fabrics left over after stitching. Feel and touch each piece of fabric. Now try to label some of the fabrics as cotton, silk, wool or synthetic after asking for help from the tailor. तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक टेलरिंग शॉप पे जाके जो टेलर कटिंग करता है ना कपड़ा जो गिर जाते हैं टुकड़े, उनको टच करके देख सकते हो एंड उसको आप एक बुक के पेज में चिपका के अलग अलग कपड़ों को लेबल कर सकते हो। ये है एक एनलार्ज व्यू ऑफ पीस ऑफ फैब्रिक। कोई भी कपड़े का टुकड़ा अगर अगर आप एकदम बारीकी से देखोगे तो यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। आपने जो कपड़े पहने हैं उसको आंखों के एकदम पास लाके देखिए, सब लोग देखिए। कैन यू सी सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर? Ma'am, I do this activity in my scrap file. I paste many clothes in my scrapbook. वेरी गुड। सो आपके कपड़ों पे क्या आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है एवरीवन? Yes, ma'am. यस। तो थ्रेड्स है वो एक दूसरे में इस तरह से इंटरसेक्ट हुए रहते हैं। डू यू वंडर व्हाट these different fabrics are made of? When you look at this any fabric, it seems a continuous piece. Now look at it closely. What do you notice? So अब जब कोई भी कपड़ा आप देखते हो तो एक कंटिन्यूअस पीस की तरह वो दिखता है, लेकिन अगर आप क्लोजली अपने कपड़े को देखोगे सो यू विल चेक दिस पीस। Select a piece of cotton fabric you label in activity 1. Now try to find out a loose thread or yarn at one of the edges and pull it out. If no loose yarns are visible, you can gently pull one out with a pin or needle. अगर आपने वो नेमिंग करने के बाद जो कॉटन का कपड़ा है उसे ले लीजिए, उसमें से जो भी एक निकला हुआ थ्रेड रहेगा उसको पकड़िए और खींच लीजिए। वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ yarns arranged टुगेदर। तो हमें पता चलेगा कि ये जो फैब्रिक है वो यार्न जो धागा होता है, यार्न होता है, वो एक दूसरे में अटक के बना हुआ होता है। सो व्हाट आर दिस यार्न मेड अप ऑफ? तो ये सारे यार्न कैसे बनते हैं दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सिक्स स्टैंडर्ड, दिस इज डन फॉर यू। अवनीत, इज इट ओके? हैव यू अंडरस्टूड? Yes, Avni, have you understood? Yes, ma'am. Okay. Continue with your writing. Seventh standard, have you got the answers? Standard 7 student, please show some interest as I am taking these efforts to teach you. 3 standard I am teaching to. This is not done. Standard 7. Have you found out animals and their mode of nutrition? Yes, ma'am. Can you tell me?
Yes, can you read? Yes. Yes, please. Snail. Snail eats leaves and flowers. Mode of feeding is scraping. Ant eat Ant eats anything. Mode of feeding is scraping. Eagle eats meat. He swallows it. Hummingbird eats nectar. Mode of feeding is sucking. Lice eats blood. Mode of eating is sucking. Mosquito also eats blood. Mode of feeding sucking. Butterfly eats nectar. Mode of feeding is sucking. Housefly rotten food. Mode of feeding is siphoning. Very good. Very good, Pranav. आर्यन आपने लिखा है? Aryan, have you written? Here is one amazing fact for you everyone. आप सबने देखिए, आप याद रखिए सब लोग. Starfish feeds on animals covered by hard shell of calcium carbonate. कभी आपने starfish देखा है? Have you ever seen a starfish? Anyone? Yes, किसी ने starfish देखा है कभी? No one? Okay, fine. सो ये स्टारफिश क्या खाता है पता है? जो भी एनिमल्स के हार्ड शेल रहते हैं ना कैल्शियम कार्बोनेट के, जैसे कि क्रैब क्रैब वगैरह रहते हैं, तो उनके हर्मिट क्रैब, उनके शेल, जो भी शेल फिश रहते हैं, उनके जो भी शेल होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं. तो ये स्टारफिश उनको खाता है. आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल. सो ये क्या करता है स्टारफिश? शेल ओपन होने के बाद अपना स्टमक है वो अपने माउथ से लेकर जो भी सॉफ्ट एनिमल है इनसाइड, आपने शेल देखा होगा तो शेल में स्नेल वगैरह एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट रहती है अंदर, तो उनको सॉलो कर लेता है. द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी. जो स्टमक बाहर आया हुआ है वो खाने के बाद अंदर शरीर में चला जाता है. एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड. ओके, so everything is been understood here. Next, we have to learn for the mode of digestion in human, and for that we will require the whole lecture. So in the next lecture, please do remember, please give me reminder that we have to start with 7th standard. And सब लोग please जल्दी join कीजिए so that I can start earlier, and सबके लिए एक जो टाइम अलॉट किया गया है वो अच्छी तरह से मिले. नाउ आप देख सकते हो कि 5th स्टैंडर्ड वाले बहुत जनों ने लेफ्ट कर दिया है. 7th स्टैंडर्ड में सिर्फ प्रणव अकेला ही है. सो वी विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर. Avneet, can you show me your book? Those fill in the blanks you have written, right? Can you show me? Yes, Avneet. Okay, so everyone, this is done for today. You can leave the class now. Everyone, you can leave the class now. Bye. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, welcome. Bye.